दोस्तों नमस्कार। मैं आपकी दोस्त संध्या। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय भीम। तो आज मैं बात करूंगी। अभी थोड़ा सा बचा है कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 60 में क्या है, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, यानी संविधान की शपथ लेते हैं ना। राष्ट्रपति भी लेते हैं, विधायक भी लेते हैं, एमपी एमएलए ये सबको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। अपना नाम लेते हुए 3 बार शपथ लेनी पड़ती है। तो मैं इस शपथ को रीड करूंगी कि कैसे शपथ लेते हैं, क्या है संविधान में व्यवस्था। I do swear in the name of God solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President or discharge the functions of the President। इसकी जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो दिलाते हैं, और यदि वो अनुपस्थित होते हैं तो जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन वो दिलाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर संविधान में दिया गया है शपथ ग्रहण करने की जो पद्धति है। तो swear in the name of God, I do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President or discharge the functions of the President of India, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। ये कहना पड़ता है शपथ के अंदर। किसको? राष्ट्रपति को। और यही बात जब उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, तब भी ठीक है। अब मैं पढ़ूंगी आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी ये एक प्रोसीजर है, यानी महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो 61 का नंबर 1, when a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of parliament। Second, no such charge shall be preferred unless A, the proposal to prefer such a charge in contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing, signed by not less than 1/4 of the total member of the house। यानी एक प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग चलाने के लिए सदन में, पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स का होना जरूरी है। द हाउस हैज बीन गिवन ऑफ देयर द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, एंड बी सच अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। अच्छा, जो रेजोल्यूशन जो लाया जाता है उसके लिए तो 1/4 होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स का, लेकिन जब वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, प्रस्ताव पास करने के लिए, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, इसमें 2/3 बहुमत, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, चलिए होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी। Third, when a charge has been so preferred by the either house of parliament, the other house shall investigate the charge or
accuse the charge to be investigated, and the president shall have the rights to the appear and to be represented at such investigation. Investigation. 4. If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the House, by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed. आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस of the person elected to fill a casual vacancy. इसका number 1, an election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term. Second, an election to fill a vacancy in the office of president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the 5 years from the date on which he enters upon his office. 63. The Vice President of India. There shall be a Vice President of India. 64. The Vice President to be ex officio Chairman of the Council of States. The Vice President shall be ex officio Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit. जो योग्यताएं राष्ट्रपति के लिए भी हैं वही उनके लिए उपराष्ट्रपति के लिए भी हैं. Provided that during any period when the Vice President acts as President or discharges the functions of the President under Article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under Article 97. चलिए मैं यहाँ तक पढ़ लेती हूँ इसको हिंदी में, फिर उसके बाद में यानी राष्ट्रपति जब अपने ऑफिस के लिए जब उनका चुनाव हो जाता है और वो इलेक्शन जीत लेते हैं प्रेसिडेंट का, तब वो शपथ लेते हैं. शपथ ग्रहण समारोह होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी को. तब राष्ट्रपति जी कहते हुए पढ़ते हैं, मैं अमुक, जो भी जैसे कि जो भी राष्ट्रपति का नाम होता है वो अपना नाम लेते हुए कहते हैं, मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ या ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा. आर्टिकल 61 यानी 61 आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है. यानी आर्टिकल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया. नंबर 1,
जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। संसद के दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ पीपल, द हाउस ऑफ पीपल एंड द हाउस ऑफ स्टेट्स। इनमें जो लोकसभा है और राज्यसभा, इनमें से कोई भी सदन आरोप लगाने के लिए अपनी जो प्रक्रिया शुरू कर सकता है। नंबर 2, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रतिस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। अब इस आरोप को लगाने के लिए भी कम से कम 14 दिन की जो लिखित सूचना पहले देनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो सदस्य संख्या है कुल वहाँ पर उसका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों संकल्पना के साथ प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया जाना जरूरी। नंबर 3, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। जब एक सदन यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पास करवाएगा तो दूसरा जो सदन है वो उनके आरोपों का अन्वेषण यानी उनकी जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थिति होने और अथवा प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अच्छा, तो ये सब कराने का राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है। नंबर 4, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया या आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा। हाँ, तो नंबर 4 में ये संकल्पना है, ये अन्वेषण के परिणाम स्वरूप ये घोषित हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। यदि जब ये सब सत्य पाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है या उसके वायलेशन के वो भागी हैं, तो फिर वो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तब ऐसे संकल्प का प्रभाव उनके इस पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में अतिरिक्त राष्ट्रपति जब हट जाते हैं ना, महाभियोग होता है, तब या तो इम्पीचमेंट के द्वारा या फिर अचानक उनकी मृत्यु ऐसे कुछ होता है, तो उनका जब पद खाली हो जाता है तब क्या होता है, ये इसका जिक्र अनुच्छेद 62 में किया गया है। यानी इसमें 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, उनके रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नंबर 2, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र, यानी उस पद को भरने के लिए यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में मतलब कितना समय चाहिए, 6 महीने, 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा, 6 महीने के अंदर मतलब। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ठीक है। 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति को बनाए जाने का वर्णन किया गया है
कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वे अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को पदेन वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इतना पढ़ती हूँ। अगला पढ़ूंगी मैं कल। क्या? आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मुझे दें इजाज़त। मैं आपकी दोस्त संध्या मैडम या संध्या मैम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको डीपली सुनने की आदत डालें। ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मैं सबको ये एक डिजिटल मंच के माध्यम से मैं आप सबको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप सुनने की आदत डालिए। अगर कम सुनाई देता तो कान में लीड लगा के सुने तो ज़रूर। ये मेरी अपील है आप लोगों से, और मैं चाहती हूँ कि घर घर ये संविधान की जो विद्या है, जो विधि है, ये कानून है, जो लोगों के घर घर पहुँचे। हर बच्चा इस ज्ञान को अपने दिमाग में एंटर करे और अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बने। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। कल मैं स्टार्ट करूँगी उपराष्ट्रपति के बारे में, जो संविधान में दिया है कि भारत का उपराष्ट्रपति कैसे बनता है और उनकी पदावधि क्या है, उनके कार्य क्या हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।